morning everyone. Today we'll discuss mathematics UT 2025 question paper. So starting with question number 1. For the function fx, which of the following is true or false? So we all know कि हम इसमें क्या करते हैं. First we do the first derivative of the given function. So this is f dash x, which is equals to minus 6x square plus 6x and plus 36. What is the next step to find the critical points? तो जब हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट्स आ जाते हैं हम उसमें इंटरवल्स को चेक करते हैं कि किसमें वो पॉजिटिव होगा और नेगेटिव होगा. सो वी कैन इजीली से, क्योंकि एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इट विल बी फॉल्स और बाकी सारे इंटरवल में ये ट्रूली एप्लीकेबल होगा. सो बी सी डी विल बी ट्रू. सो ऑप्शन बी विल करेक्ट. Come to the next question. Area of the region bounded by y equals to x square and the line y equals to 16. So this is our parabola. We all know. तो जब हम एक पैराबोला और एक लाइन बनाते हैं, दिस इज y इक्वल्स टू 16 एंड y इक्वल्स टू x स्क्वायर हमारा पैराबोला है. सो व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द रीजन? वेरी इजी. फर्स्ट वी फाइंड द इंटरसेक्शन पॉइंट. इंटरसेक्शन पॉइंट विल बी प्लस माइनस 4. तो जो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आएंगे दैट विल बी माइनस 4, 16 एंड 4 and 16. सो वी विल फाइंड द एरिया ऑफ द गिवन रीजन. द coordinates will be minus 4 to 4, limit minus 4 to 4 and 16 minus x square under the curve. So it will become 256 upon 3 square units when we will solve the integration. So option A is the correct answer. Come to the next question number 3. The solution of the differential equations. We can see कि homogeneous नहीं है, linear है. So we will change this into the linear differential equation dx upon dy plus 1 into x upon y equals to y. So linear differential equation है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? x into the integrating factor equals to integral of y into integrating factor and plus c. So 3xy minus y cube यानी कि c option will be correct. Okay, come to the next question. This is question number 4. Very simple question. एनसीईआरटी का क्वेश्चन है. इंटीग्रल ऑफ ई रेज टू पावर 2x माइनस ई रेज टू पावर माइनस 2. वी ऑल कैन सी कि अगर हम डिनोमिनेटर में सब्स्टिट्यूशन करेंगे द डेरिवेटिव इज देयर इन द न्यूमरेटर. सो वी विल पुट दिस एज t. तो इसका हमारे पास डेरिवेटिव ऊपर गिवन है. सो विल डू द इंटीग्रेशन. तो सी पार्ट विल बी द करेक्ट ऑप्शन. तो दिस इज अ वेरी स्ट्रेट क्वेश्चन. Okay, come to the next question. Question number 5. If x is real, then minimum value of the function is again very easy. तो क्या minimum value के लिए हम क्या करेंगे? We will find the first derivative 2x minus 8. Now coefficient of x square क्या है? Which is equals to 1, which is greater than 0. अब x इसने real दिया है तो पैराबोला ओपन का होगा, पैराबोला ओपन upwards. So 4 is the minimum value. 4 क्या होगी हमारे पास? That will be the minimum value. यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4. It's a real, तो 4 will be the minimum value. Okay. Come to the next question. Again very easy. 3 matrices are given. This into A. A is a matrix. Obviously the order will be same 2 by 2. This is the third matrix equals to 1 1 0 1. Then matrix A will be. तो ये क्वेश्चन हमने बहुत बार किया है. Since A is the matrix, तो इसका ऑर्डर भी क्या होगा? That is 2 by 2. 2 by 2 होगा तभी वो मल्टीप्लाई होगा. तो अब इसमें हमारे पास क्या होगा? वी हैव डन दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस. सो वी विल गेट हियर 3 मैट्रिसेस और इसको हमने वापस में क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है एंड इक्वेट करना है. वी कैन फर्स्ट मल्टीप्लाई दीज 2 मैट्रिसेस, देन दीज 2 मैट्रिसेस. वी विल गेट अ स्क्वायर मैट्रिक्स. इक्वेट करेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म को. वी विल गेट 4 इक्वेशंस. ए बी सी डी में विल गेट 4 इक्वेशन. एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे. सो विल गेट सी पार्ट. यहाँ पर हमारे पास ए हो जाएगा 1, आर बी विल बी -1, सी विल बी -3 एंड डी विल बी 4. वी नीड टू सॉल्व ऑल द वैल्यूज, देन वी विल गेट दिस मैट्रिक्स ए. ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. कंसिडर एन एलपीपी मैक्सिमाइज दिस ऑब्जेक्टिव फंक्शन subject to constraint. If the maximum value of this objective function at x equals to alpha and y equals to beta, then the value of alpha plus beta very easy. तो first we find the corner points. तो हम रफली इसका डायग्राम बना सकते हैं. हमारे पास एलिमिनेशन मेथड से ही कॉर्नर पॉइंट्स आ जाएगा. दैट इज x equals to 10 and y will be 50.
when we will solve these two using elimination method, तो हमारे पास कॉर्नर पॉइंट आ जाएगा x equals to 10, y equals to 50. So x equals to alpha and y equals to beta. So our alpha plus beta will be 60. So B option will correct. Come to the next question. Very easy. Y is given. बहुत easy question है. This is the cube root of 1 minus x cube. Find the first derivative. तो इसको हम और सिंपलेस्ट वे में कैसे लिख सकते हैं? आई थिंक एवरीबडी हैज डन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन. दिस इज -1/3 और x रेज टू पावर n का डेरिवेटिव सबको पता है, n इंटू एक्स रेज टू पावर n माइनस 1. सो बी पार्ट विल applicable. So B is the correct option. Now come to the question number 9. The value of this integral will be what? अब इस इंटीग्रल को हम कैसे लिख सकते हैं? We will use the properties of logarithm. So we can write log 1 minus x upon x into dx. पहले तो हमने इसको LCM को सॉल्व कर लिया. Now log a upon b की प्रॉपर्टी सबको पता है, everybody has done. That is log a minus log b. This is log a minus log b. अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? We can again use the property of integral, that is 0 to 1 f of x को हम क्या लिख सकते हैं? f of a minus x, 0 to a. जब हमारे पास log की प्रॉपर्टी होती है उसमें हमने ये प्रॉपर्टी अप्लाई की. सो इट जो आंसर आएगा दैट विल बी 0. इसको सॉल्व करके जो आंसर आएगा दैट विल बी 0. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10. We can see A is a square matrix. If A is a square matrix and determinant of A is 5, what will be the value of minus of A into A transpose? इसका determinant, we know the properties A into B. The determinant of A into will be the determinant of A and determinant of B. Next we know that minus of determinant of A is equals to determinant of A. Also we know that minus A into A transpose equals to minus A, and here A transpose. So we can write here determinant of A into determinant of A transpose. Since A is a square matrix of order 3, determinant of A की value 5 given है. So 5 into 5, that is 25 is the correct answer. So option A will correct. Okay, next question. Here question number 11. Now they are saying ये जो आपके पास LPP गिवन है, ये इसमें कौन सा कंस्ट्रेंट एप्लीकेबल होगा, विच कंडीशन विल बी एप्लीकेबल. तो वी ऑल नो कि हम ओरिजिन चेक करते हैं ट्रू एंड फॉल्स के लिए. अगर ट्रू होता है दैट इज टुवर्ड्स ओरिजिन और फॉल्स होता है दैट इज ऑपोजिट टू द ओरिजिन. सो हेयर ए पार्ट विल बी करेक्ट, क्योंकि अगर हम यहाँ 0 0 पुट करें, 0 इज लेस देन 12, यस इट इज ट्रू, तो रीजन की तरफ रीजन होगा. अगेन यहाँ पर 0 0 पुट करें, अगेन दिस इज ट्रू, दिस इज द ट्रू इनइक्वालिटी, तो और रीजन की तरफ इसका रीजन होगा. सो दिस विल बी द फिजिबल रीजन, और ये किस कंडीशन में होगा? इन ऑप्शन ए. नाउ दिस इज द क्वेश्चन दैट मैच द लिस्ट विद कॉलम ए विद कॉलम बी. अब इस तरह के क्वेश्चंस में क्या होता है हमारे पास कि हमें एक या दो ही सॉल्व करने पड़ते हैं. अगर वो हमारे पास ऑप्शंस में गिवन है तो वी कैन कंपेयर विद द ऑप्शन, और बाकी के हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती. फॉर एग्जाम्पल हेयर द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, वी ऑल नो कि अगर हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ अगर डेरिवेटिव हो तो डिग्री इज नॉट डिफाइंड. सो ए पार्ट का आंसर हो गया थर्ड. द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर क्या होता है? हायर डेरिवेटिव दैट इज 3, तो इसका हो गया 3. So A part का आंसर 3 और B part का आंसर 4, that is applicable in option C. So C part is the correct answer. Okay, come to the next question. If the matrix, अब ये जो मैट्रिक्स है ये आपका इस तरह से गिवन है, that is 3 4 minus 5 2A 0 3 and then minus 5 B and 10. This is the matrix and this is the symmetric matrix. So symmetric matrix की हमारे पास प्रॉपर्टी क्या होती है? That A transpose equals to A. Find the value of 5A plus 2B. तो कुछ नहीं करना, आपने इसका ट्रांसपोज निकालना है which is equal to the same matrix. Compare the corresponding elements. So our values will be 5A plus 2B, जो हम इसमें पुट करेंगे which will equal to 16. So C option will be the correct answer.
Okay, now come to the next question again. This is the question number 14. This is the given matrix if the matrix is not invertible. ये मैट्रिक्स इन्वर्टेबल नहीं है, तो हमें पता है कि अगर मैट्रिक्स इन्वर्टेबल नहीं होता तो उसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाता है, 0. फाइंड द अननोन क्वांटिटी दैट इज लैम्डा. सो टू फाइंड द अननोन क्वांटिटी वी कैन open the determinant, we can solve the determinant along any row or column. So part C will be the correct answer. इसका determinant find out करेंगे, so answer will be 1. Okay, next again match का question है हमारे पास. The probability distribution of random variable is given k upon 2 raised to power x. The values of x are 0, 1, 2, 3. Match with list A and with list B. So when we will put x equals to 0, हमारे पास क्या आ जाएगा, k upon 2 raised to power 0, that is 1. So k. When we put x equals to 1, it will become k upon 2. When we put x equals to 2, this will k upon 4, and यहाँ पर x equals to 3, so k upon 8 will be the value. And we know the sum of all the probabilities of in a probability distribution क्या होता है हमारे पास, that is equals to 1. So k, the value of k will be 8 upon 15. So हमारे पास k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 upon 15. तो a का आंसर क्या हो जाएगा, that will be the third. तो हमारे पास सिर्फ इन चारों में एक ही ऑप्शन में a का आंसर थर्ड आ रहा है, that is option A. So there is no need to solve all the other columns. That is up to you if you want to cross check. Okay, next. If again A is an invertible matrix, then match with list A with list B, and this A is the matrix of order 3. So हमारे पास प्रॉपर्टी क्या होती है, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ A इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ A रेज़ टू पावर n माइनस 1. n इज द ऑर्डर. तो हमारे पास A का ऑप्शन क्या होगा, दैट विल बी द सेकेंड. A जो है सेकेंड पर जा रहा है. सो अगेन हियर यहाँ पर सिर्फ A इज द पार्ट जहाँ पर A का आंसर इज द सेकेंड ऑप्शन. So हमारे पास A is the correct answer. So again that is very easy to solve. Okay, come to the next question. The matrix A is given. क्या ये diagonal है? Is it scalar, square और symmetric? Choose the correct answer. अब ये square matrix क्या होता है? Order 1 by 1, 2 by 2, 3 by 3. तो हाँ, ये square matrix तो है and that is true. जो हमें पता था वो हमने पहले लिख लिया. अब हम सिमेट्रिक के लिए चेक करते हैं, क्या ये सिमेट्रिक है. इफ दिस इज मैट्रिक्स ए, तो ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो हमारी फर्स्ट कॉलम बन जाएगी, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो इज थर्ड कॉलम. क्या दिस इज इक्वल्स टू मैट्रिक्स ए, यस. सो ये सिमेट्रिक भी हुआ. अब क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है, नहीं, क्योंकि अपर ट्रायंगुलर में ऑल द एलिमेंट्स चेक कर सकते हैं. इज इट अ स्केलर मैट्रिक्स, नो. सो कौन सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगी, ऑप्शन सी, जिसमें सी और डी पार्ट हमारे ट्रू है. सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन. ओके, कम टू द नेक्स्ट. बुक का क्वेश्चन है, एवरीबडी आई थिंक हैज डन. एनसीईआरटी का क्वेश्चन है. x is the function with a cos t plus log tan t by 2 and y is the function a sin t. Find the value of first derivative where t equals to pi by 4. So to find, first we'll find dx upon dt. हमारे पास एक फंक्शन आ जाएगा. Then we'll find dy upon dt और उसके बाद we will find dy by dx. और जब वो वैल्यू आ जाएगी we will put the value of t equals to pi by 4 and when we put this we will get 1 as a correct answer. So B option will applicable in this question. Okay, next. If A is a new symmetric matrix of order 5, तो हमें पता है new symmetric matrix क्या होता है, where A transpose equals to minus A. Find the value of determinant of adjoint of A. तो अभी हमने ऊपर determinant of adjoint of A पढ़ा, that is n minus 1. So we'll put here. अब new symmetric matrix of odd order, अगर उसका ऑर्डर ऑड है तो उसमें डिटर्मिनेंट की वैल्यू हो जाती है 0. सो दिस इज द प्रॉपर्टी इन न्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर. द डिटर्मिनेंट इज 0. सो वी हैव अप्लाइड दिस प्रॉपर्टी and the answer will be 0. So B is the correct option. Okay, come to the next question. A problem in maths is given to 3 students whose chances of solving the problem is 1 by 2, 1 by 3
and 1/4 the probability that the problem is solved. अब ऐसा सेम क्वेश्चन हमारी एनसीईआरटी में है या फिर रेफरेंस बुक में हमने बहुत बार किया हुआ है. So they have given their individual probability of solving the problem. अब इसमें हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को दो तरीके से करते हैं, या तो लॉन्ग मेथड से करते हैं या शॉर्ट मेथड से करते हैं. नाउ दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग ए बाय सॉल्विंग द क्वेश्चन. दिस इज द प्रोबेबिलिटी दैट बी विल सॉल्व द क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी दैट सी विल सॉल्व द क्वेश्चन. अब क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी द प्रॉब्लम इज सॉल्व. तो प्रॉब्लम इज सॉल्व इसको हम शॉर्ट मेथड से करते हैं. 1 माइनस प्रॉब्लम इज नॉट सॉल्व, कि किसी से भी वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई. तो इसमें हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी. ए से वो प्रॉब्लम सॉल्व होती है 1/2, तो ए से वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती. द प्रोबेबिलिटी इज 1 माइनस 1/2. बी से वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती एंड सी से भी वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती. तो नन ऑफ देम हैज सॉल्व द प्रॉब्लम. उसको हमने 1 में से माइनस कर दिया. सो आंसर विल बी 3/4. सो ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर. ओके, कम टू द नेक्स्ट. कंसिडर क्लोज सिलेंडर. अगेन बुक का क्वेश्चन है. मैक्सिमम मिनिमम. कंसिडर अ क्लोज सिलेंड्रिकल रेडियस R with the fixed surface area, the volume of the cylinder is maximum when its height is. वैसे ऐसा क्वेश्चन हमने इतनी बार किया है कि हमें उसका आंसर ही पता होता है, that is 2R. बट अगेन अगर हमें इसको सॉल्व करके दिखाना है, so we need that this is the cylinder of the given height and the radius. So हमारे पास surface area is 2πr into h plus r, और h को हम इन टर्म्स ऑफ अगर हम r सॉल्व कर रहे हैं टू फाइंड द फंक्शन एंड द फर्स्ट डेरिवेटिव. वॉल्यूम वी ऑल नो दैट इज पाई आर स्क्वायर एच. इसको सॉल्व करेंगे, डी वी बाई डी आर निकालेंगे, देन वी विल पुट द डी वी बाई डी आर इक्वल्स टू 0. सो हमारे पास कंडीशन आ जाती है एच इक्वल्स टू 2r. और अगर अगेन सेकेंड डेरिवेटिव में हम ये वैल्यू पुट करेंगे सो इट विल बी नेगेटिव, तो इट विल बी मैक्सिमम. ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द डोमेन ऑफ y इक्वल्स टू दिस. अब हमें कॉस इनवर्स x का रेंज पता है, प्रिंसिपल वैल्यूज पता है. सो हेयर पार्ट बी विल बी करेक्ट. देखते हैं ये कैसे आएगा. सिंस कॉस इनवर्स x की जो हमें रेंज पता है दैट इज -1 to 1. अब नाउ हमारे पास जो फंक्शन है, जो एंगल है दैट इज x² - 4. नाउ सॉल्विंग दिस इनइक्वालिटी, अब हमने 11th में सीखा था इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना. दिस विल बिकम x square which is greater than equals to 3 and which is less than equals to 5. Now this is x square, तो हमें x की रेंज पता करनी है. If x square is greater than equals to 3, this will implies x is less than equals to -√3 and x is greater than equals to 3√3. अब अगर हम इस कंडीशन की बात करें तो this is x square is less than equals to 5. So it means -√5 less than equals to x is less than equals to √5. तो अगर हम दोनों कंडीशन को यहाँ पर जज करें so B will be the correct option. So that is the correct answer. Okay. Next question number 23. Which of the following statements are true? वेक्टर्स का क्वेश्चन है. R वेक्टर है xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप. xyz डायरेक्शन रेशियोज हैं. क्या ऐसा होता है कि अगर हमारे पास ये वेक्टर इक्वेशन है तो xyz डायरेक्शन रेशियोज होती हैं. Okay, for any two vectors the commutative property hold. If two vectors are perpendicular the cross product is 0 and projection of B on A is A dot B. तो अब हमने ये सारे क्या है, ये सारे concepts हैं जो हमने पढ़े हैं. So in question number 23 B will be the correct answer, जहाँ पर A B D true होगा. ये true है, yes this is true. x y z हमारी डायरेक्शन रेशियोज होती हैं. कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड कर दी है, लेकिन ये नहीं होता अगर परपेंडिकुलर होता है तो डॉट प्रोडक्ट 0 होता है इंस्टेड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट. दिस इज ऑल्सो ट्रू. सो ए बी डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन. ओके, कम टू द नेक्स्ट. द इंटीग्रेटिंग फैक्टर. अगेन दिस इज द क्वेश्चन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. अब इसमें हम क्या करेंगे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में this is dy by dx equals to x plus xy is given. So dy by dx minus xy equals to x. So ये अब हमारी पूरी फॉर्म आ जाएगी जिसमें -3/q की फॉर्म होती है. So our integrating factor is e raised to power integral of -x into dx. So it will become e raised to power -x²/2. So B option is the correct answer. Okay, come to the next. Okay, now come to question number 25.
the physical region corresponding to the linear constraint of this linear problem, which of the following is not a constraint to the given LPP. अब इसमें अगेन हम फिजिबल रीजन कैसे चेक करते हैं, ट्रू एंड फॉल्स 0 0 पुट करेंगे. तो अगर हम इन इनइक्वालिटीज में 0 0 पुट करेंगे, दिस विल बिकम ट्रू. x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, ये हमारे पास लाइन है. अगर हम इसका रीजन चेक करेंगे, दिस इज ऑपोजिट टू द ओरिजिन, ये टूवर्ड्स द ओरिजिन जाएगा, दिस इज ऑपोजिट टू द ओरिजिन. x माइनस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, तो ये हमारे पास ओरिजिन से टू ऑपोजिट रीजन में जाएगा. बट यहाँ पर ये चीज शो नहीं कर रहे हैं. सो हमारे पास C इज नॉट अ कंस्ट्रेंट टू द गिवन LPP, क्योंकि इसका रीजन जो है टूवर्ड्स द ओरिजिन जा रहा है, ना कि ऑपोजिट टू द ओरिजिन. सो C पार्ट विल बी द करेक्ट ऑप्शन. Okay, come to the next question, that is question number 26. The corner point of the bounded feasible region of LPP is given, then objective function is given. What is the maximum minus minimum of Z? तो हमने मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, देन मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है. अब हमारे पास सारे कॉर्नर पॉइंट्स गिवन हैं, इसमें हम एक एक करके ऑब्जेक्टिव फंक्शन में पुट करेंगे. तो हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी 60, देन 180, देन अगेन 180. सो इन तीन कॉर्नर पॉइंट्स की हमारे पास ये वैल्यू आ गई, एंड देन द थर्ड वन इज 90. सो मैक्सिमम विल बी 180, मिनिमम विल बी 60. तो इनका जो डिफरेंस है दैट विल बी 120. सो सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. इन अ कॉलेज 30% स्टूडेंट्स फेल इन फिजिक्स, 25 फेल इन मैथ्स एंड 10% in both. So one student is chosen. The probability she fails in physics if she has failed in maths. So it is clearly shown. This is the question of conditional probability. I think NCERT में है ऐसा same question. अब given क्या है, that she has failed in maths. So what is the probability? हमें find out करना है that she has failed in physics. It is given that she has failed in maths. तो हमारे पास conditional probability का फॉर्मूला होता है probability of P intersection M अपॉन जो हमारे पास गिवन हो, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ m. सारी प्रोबेबिलिटीज गिवन है, सारी वैल्यूज पुट करेंगे. 0.10 इज द न्यूमरेटर, 0.25 एंड 2/5 विल बी द करेक्ट आंसर. सो ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट सोल्यूशन. Okay, the next question, that is question number 28. Function r is given, divided by x upon x square plus 1. रिलेशन इज अ सेट ऑफ रियल नंबर्स. अब हमें चेक करना है कि क्या ये रिलेशन 1 1 है, ऑन टू नहीं है, ऑन टू है, 1 1 है, नीदर 1 1 और ऑन टू, या बोथ 1 1 एंड ऑन टू. तो लेट अस चेक प्लीज. अब इसमें सी पार्ट करेक्ट होगा, ना तो ये 1 1 होगा, ना ये ऑन टू होगा. ये कैसे होगा? 1 1 के लिए क्या होता है, f of x1 इक्वल्स टू f of x2, इट मीन्स x1 इक्वल्स टू x2. तो इसमें अगर हम कुछ भी चूज करें, कोई भी वैल्यू ले, तो हमारे पास ये चीज एप्लीकेबल नहीं होगी. सो ये 1 1 नहीं होगा. सो डिस्टिंक्ट वैल्यूज लेते हैं. अब हम अगर इसको ऑन टू के लिए चेक करते हैं, सो लेट एफ एक्स इक्वल्स टू वाई. तो अगर हम वाई करें इन टर्म्स ऑफ एक्स, एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1. सो लेट y equals to 1, that is belongs to r. So 1 equals to x upon x square plus 1. So x square plus 1 equals to x. Solving using these equation, तो हमारे पास on to वाली कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होगी. सो सी पार्ट विल बी द करेक्ट आंसर. इट विल बी neither 1 1 nor on to. Move to the next question. Question number 29. An uncontained 5 red, 5 black. A ball is drawn, color is noted and put it in a bag. Again 2 additional balls of the same color are drawn and put in the urn. What is the probability the second drawn ball is red? यानी कि जो सेकेंड बॉल थी वो रेड हो. अब हमारे पास केसेस क्या बनेंगे? अब हमारे पास केसेस ये बनेंगे कि हमने फर्स्ट बॉल ब्लैक निकाली, ठीक है, उसके बाद उसका कलर नोट किया, 2 और ब्लैक बॉल डाल दी, पर नेक्स्ट हमारे पास रेड आ गया. या फिर हमारे पास केस बनेगा रेड बॉल के लिए अगर हम कर रहे हैं तो हमने फर्स्ट बॉल निकाली और वो रेड निकली, रेड की ही हमने और 2 बॉल्स उसमें पुट कर दी, एंड व्हेन वील ड्रॉ अगेन अ बॉल इट विल बी रेड. तो अब हम इनकी फाइंड आउट कर देंगे प्रोबेबिलिटी. दिस विल बी 5/10. अब 2 ब्लैक बॉल और डाल दी तो टोटल बॉल्स विल बी 12, बट निकली रेड, दैट इज 5/12. अगेन रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी दैट इज 5/10.
Again, though red ball we have mixed it, so it will be 12 and now the total red ball will be 7, so it will be 7 by 12. So आंसर आ जाएगा 1 by 2 जब हम इसको सॉल्व करेंगे. So 1 by 2, that is B part is the correct option. Okay, come to the next question is question number 30. Let A and B are unit vectors. Unit vectors हमें पता है जिनका magnitude 1 होता है. If root 3A minus B is a unit vector, the angle between any two vectors. So angle between any two vectors का formula हमारे पास होता है, that is A dot B equals to the magnitude into cos theta. अब since root 3A vector minus B vector equals to 1, इसका स्क्वायर करते हैं. आई थिंक ऐसा सिमिलर क्वेश्चन एनसीईआरटी में है, विच इज इक्वल्स टू 1. इसको हम लिख सकते हैं रूट 3A माइनस बी एंड दिस विल बी रूट 3A प्लस बी विच इज इक्वल्स टू 1. सॉल्व करेंगे. A डॉट बी वैक्टर की कंडीशन क्या होती है, द मैग्नीट्यूड ऑफ इंटू कॉस थीटा. सो थीटा विल बी आर 30 डिग्री यानी कि पाई बाय 6. 30 कॉस की पाई बाय 6 वैल्यू पर होता है. सो ए पार्ट विल बी द करेक्ट आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31. फॉर एनी इवेंट्स ए एंड बी ऑफ अ सैम्पल स्पेस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू. तो इसमें हमारे पास सी और डी ही ट्रू होगा. वी कैन सी, क्योंकि अगर हम प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से पढ़ते हैं तो हम उसके पहले बेसिक जो रूल्स होते हैं वो लर्न करते हैं. तो दिस इज द सैम्पल स्पेस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, नहीं ये तो एप्लीकेबल ही नहीं है. क्या इंटरसेक्शन का फॉर्मूला ये होता है, ये भी नहीं होता. सो दिस इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वेयर ए नॉट गिवन विच इज बी 1 माइनस. तो यस, ये तो एप्लीकेबल है. एंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ये तो अभी हमने ऐसा सेम क्वेश्चन किया. तो सी और डी किस में आ रहे हैं, इन ऑप्शन डी. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. Come to the next question, that is question number 32. So if the function is continuous, again ये continuity का question है, find the unknown quantity. तो everybody knows how to solve it because we know the rule. Rule हमारे पास क्या होता है कि LHS, if the function is continuous then left hand limit equal to the right hand limit equals to the limit of a function. तो left hand limit में limit of x tending to 0 negative the fx, और हमारे पास ये है sin 3x upon x. तो everybody knows how to solve it. 3 से multiply and divide कर देंगे, the answer will be 3. Now this equals to the function, limit of a function 3 equals to 3k by 2. तो k की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2. So C part is the correct solution. Come to the next. The area of a triangle formed by the vertices O and B, where O and OB vectors are given. So we know that what is the area of triangle. That is area of triangle equals to half into the magnitude of the cross product. OA vector and OB vector. Since OA vector and OB vectors are given, we can find the cross product, that is IJK, and their corresponding components 1, 2, 3 and -3, -2 and 1. So this is the question of to find the area of triangle. So area of triangle कैसे find out करते हैं हम, in the given condition of vectors, that is the magnitude of the cross product. So OA vector and OB vector is given, we can find the cross product of the corresponding components. It will be 6 root 5. So half से divide करेंगे, so 3 root 5 square units will be the correct answer. So option A is correct. Here option A, 3 root 5 is the correct answer. Okay, come to the next question. A and A is to power 4. Both matrices are given. Find the value of k. So we all know how to find the multiplication of two matrices or 3 matrices. First we will find A square, then we will find A square into A, then we will find जो हमारे पास final value आएगी A cube into A, that will be R A raised to power 4. उससे हम compare करेंगे. When we will compare this, तो हमारे पास जो values आएंगी, R A square will be 1 0 6 1 and A square into A, that is 1 0, that is 12 1. Now compare the values, R K will be 12. So C part is the correct answer जब हम corresponding values को equate करेंगे. Okay, come to the next question. If the direction ratios of two lines are given, what is the angle between these two lines? We all know.
if the direction ratios of two lines are given, the angle theta is cos inverse the magnitude of a1 a2. ये तो सबको फॉर्मूला बहुत अच्छी तरह से मगअप होगा since we all have done in CBSE. तो CUT की प्रिपरेशन के लिए it helps. a1 square plus b1 square plus c1 square and a2 square plus b2 square plus c2 square. The direction ratios are given. a1 is a, b1, c1, this is our a2, b2 and c2. We'll put the value, we'll get the answer is 0. If theta equals to cos inverse this, तो theta की value आ जाएगी हमारे पास pi by 2. So C option is the correct answer. Okay, come to the next. The solution of the differential equation, we can see that it is a homogeneous. इसमें हमारा कुछ linearity नहीं हो रहा, variable separable नहीं हो सकता. We can see the degree is equal, so this is the question of linear differential equation, homogeneous differential equation. So homogeneous को हम कैसे लिखते हैं? V, we will let V equals to yx, so dv by dx is v plus x into dv by dx, which is equals to 1 plus v upon 1 minus v. Again इसको हम variable separable से करते हैं, so it will be lengthy in 2 or 3 steps, but finally you can easily get your answer. So D part will be the correct answer when you will solve the homogeneous differential equation. Okay, the next is the value of lambda for which the two vectors are perpendicular. तो अगर हमारे पास दो वेक्टर perpendicular होते हैं तो we know that the dot product is 0 if two vectors are perpendicular. We all know, तो डॉट प्रोडक्ट हमें इजीली फाइंड आउट करना आता है, दैट इज 2 into 3, then this is minus 1 into lambda, then plus 2 into 1 which is equals to 0. So value of lambda will be 8. So B part is the correct answer. Okay, come to the next question, 38. If ABC are the three vertices of parallelogram, what is the area in square units? Again, this is the question of vector. Two adjacent vectors. Here are the two adjacent vectors, AB vector and AC vector. So this is minus 2 minus 3 and minus 1 minus 1. Now using the magnitude of the cross product, so this is plus 1 and minus 1, magnitude of the cross product, the area हमारे पास आ जाएगा, that will be the 1 square units. So A will be the correct option. Okay, come to the next. The value of this, again this is the property of integral minus a to a की even function है या odd function है. We can easily see कि अगर हम x की value minus में put करें, we'll get the odd function. Since it is an odd function, तो odd function का integral जो है हमारे पास जो minus a to a में fx into dx होता है, और अगर ये odd function होता है तो value is 0. So this is the rule. Okay, come to question number 40. Relation R is defined 1 to 15. R is a relation, ये हमारे पास लीनियर में एक relation given है. Is it reflexive, transitive, neither reflexive, symmetry? तो उसको हम let us check this relation. So इसका आंसर होगा B part. This is neither reflexive nor symmetric, और इसको हम check करते हैं. जैसे हमारे पास coordinates, when we put all these value we'll get 1 4, then we'll get 2 8 and 3 12. So A belongs to A, no, this is not applicable. इसी तरह ये सिमेट्रिक नहीं है, वो हमने चेक कर लिया. रिफ्लेक्सिव के लिए if AB belongs to A then BA belongs to A, तो ये भी हमारे पास कंडीशन होल्ड नहीं करती है, तो this is not reflexive. So B part is the correct answer. Okay, the next one, the value of lambda so that the lines, these two lines are given are at right angle. अब हमें पता है कि डायरेक्शन रेशियोज हैं. डायरेक्शन रेशियोज हम पहले इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखते हैं. डायरेक्शन रेशियोज को -3 2 लैम्डा बाय 7 2 फर्स्ट लाइन की डायरेक्शन रेशियोज है, एंड -3 लैम्डा बाय 7 1 एंड -5. सो जब हम इनका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, इन दोनों का अगर हम डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे, सो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज 70 बाय 11, जो कि है ऑप्शन ए. सो ए पार्ट इज द करेक्ट ऑप्शन. Now see question number 42. If y equals to sin inverse x, then what is the value of this expression? So we can easily see that we need to solve here the second derivative. So our first derivative is dy by dx equals to 1 upon square root of 1 minus x square.
अब हम इसको किसी भी मेथड से सॉल्व कर लें, वी कैन सी दैट अगर इसको ट्रांसपोर्ट करें, दिस इज वन, अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे, वी कैन यूज द प्रोडक्ट रूल, टी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे, सो वी विल गेट हेयर ए पार्ट, हमारे पास क्या आएगा, ए पार्ट विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस। ओके, द नेक्स्ट अगेन बुक का क्वेश्चन है, तो उसको देखते ही हमें पता चल गया हमने इसको क्या करना है, रैशनलाइज करना है, किसी सब्स्टिट्यूशन से बहुत ज़्यादा लेंदी होने के चांसेस हैं, सो विल डू विद द मेथड ऑफ रैशनलाइजेशन। सो हमारे पास ये 0 to 1 स्क्वायर रूट ऑफ 1 plus x plus root x and here 1 plus x and minus x. So again integration by separation, तो हमारे पास इसमें आंसर आएगा that will be 4 root 2 by 3, 4 root 2 by 3 जो कि b part है, so b part is the correct answer. Okay, the next one, the foot of the perpendicular drawn from the point, again बुक में ऐसे हमने क्वेश्चन बहुत बार किए हुए हैं and these are the straight and direct question है। So foot of the perpendicular drawn from the point 1, 6, 3 to the line x upon 1 equals to y minus 1 upon 2 equals to z minus 2 by 3. Now coordinate of the line हमारे पास क्या आ जाएंगे, that is lambda, 2 lambda plus 1 and 3 lambda plus 2. अब डायरेक्शन रेशियोज क्या हैं, फ्रॉम द परपेंडिकुलर टू द लाइन आर लैम्डा माइनस 1, 2 लैम्डा प्लस 1 माइनस 6 एंड 3 लैम्डा प्लस 2 एंड माइनस 3. यूज द कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी, तो हमारे पास लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी, लैम्डा विल बी 1. अगेन पुट दिस वैल्यू इन द कोऑर्डिनेट, तो हमारे पास 1, 3, 5 सी पार्ट आएगा कोऑर्डिनेट्स का, विच विल बी द करेक्ट आंसर. Okay, the next one, the area of the region bounded by the line x-axis and the line x equals to 2 and 4. Again, this is the question of AOI 4 minus x by 2. एरिया आ जाएगा हमारा 2 to 4 y into dx, और y हमारा in terms of x क्या था, 4 minus half of x into dx. अगर इसका सिंपल इंटीग्रेशन करेंगे, so area will be 5 square units. So B option will be the correct answer. Okay, come to the next, again very easy. If x equals to minus 1, x equals to minus 2 are the extreme points of this function. तो अब इसमें हम क्या करते हैं, f dash x फाइंड आउट करेंगे, एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, we'll find the f dash x. It will become alpha upon x plus 2 beta x and plus 1. Now f dash of minus 1, पहले minus 1 के लिए और फिर 2 के minus 2 के लिए वैल्यूज चेक करेंगे. f dash of minus 1 is 0, f dash of क्योंकि ये हमारे एक्सट्रीम पॉइंट्स है 0, सो फॉर x इक्वल्स टू माइनस 1, f dash of minus 1 हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल्स टू 1, और माइनस 2 के लिए इक्वेशन आ जाएगी अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल्स टू 2. अब यहाँ हमारे पास यहाँ पर दो इक्वेशंस हैं, दोनों इक्वेशन को विल यूज द एलिमिनेशन मेथड टू सॉल्व एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा. सो आवर अल्फा विल बी 2/3 and beta will be 1/6. So C option यहाँ पर applicable है. So C is the correct answer. Okay, come to the next. Again this is the question. थोड़ा सा complicated है पर इतना भी नहीं है क्योंकि इसमें मॉड्यूलस का यूज हो रहा है, but we know that मॉड्यूलस की दो वैल्यूज होती है, माइनस एक्स एंड एक्स, यानी कि पॉजिटिव है नेगेटिव. तो माइनस वाले रीजन में इसकी माइनस वैल्यू लेंगे और प्लस में प्लस वाली. अब हम इसको स्लिप करते हैं 2 पार्ट में, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया, दैट इज माइनस 1 to 0 एंड 0 to 1. सो इट विल बिकम 2x plus 1 अपॉन x plus 1 होल स्क्वायर एंड प्लस अगेन द सेम वैल्यू. तो हमारे पास आंसर आ जाएगा हाफ प्लस 2 log 2 बेस e एंड माइनस 1/2. सो बी ऑप्शन जो हो गया, क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा, तो बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन. यहाँ पे इसको दोनों इंटीग्रल्स को सॉल्व करके विल गेट द फाइनल वैल्यू. ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48. अगेन द फंक्शन इज गिवन, दिस इज इंक्रीजिंग इन विच इंटरवल एंड दे हैव गिवन द कंडीशन दैट x इज ग्रेटर देन 2. तो अब हमने ये देखना है कि इंक्रीजिंग कौन से इंटरवल में हो रहा है. अगेन वेरी इजी. सो दिस वॉज द फंक्शन एफ एक्स. एफ डैश एक्स क्या होगा हमारे पास, 2 अपॉन एक्स माइनस 2 माइनस 2x प्लस 4. सिंस एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, इंक्रीजिंग है, तो हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट क्या आ जाएंगे, 1 2 3. अब 2 और 3 इंटरवल ही ऐसा होगा जिसमें फंक्शन इंक्रीज करेगा. वी कैन चेक, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव आएगा, वी कैन टेक एनी पॉइंट
between this interval the f dash x will be positive, so function will be increasing. So C is the correct answer. Now next question is, this is the determinant they have given. Find if x, y and z are real numbers, so what will be the value of the determinant? Your determinant is given here, that is 3x, that is x minus y, x minus z, minus x plus y, 3y, y minus z, and the third column is minus x plus z, then z minus y and 3z. अब इस डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व कर सकते हैं? वी कैन यूज द रो एंड कॉलम ऑपरेशन. तो अगर हमें ऐसे क्वेश्चंस किए हैं, वी कैन इजीली सी कि जो अगर कॉलम 1 है हमारे पास, दिस इज आवर कॉलम 1, इसमें हम ऐड कर दें कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3, सो इट विल बिकम x प्लस वाई प्लस z, again it will be x plus y plus z, the column 1 again x plus y plus z, these two will remain same. तो अब हम इजीली देख सकते हैं कि हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है द डिटर्मिनेंट, कि इफ एनी रो और कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट इज आइडेंटिकल, सेम है, तो हमारे पास जैसे जो फर्स्ट है इसके सारे एलिमेंट्स हमारे पास इक्वल हैं, अगर हम इसको सॉल्व करें अलोंग कॉलम 1 वी विल गेट द वैल्यू 0. तो यहाँ पर डिटर्मिनेंट का आंसर क्या हो जाएगा? सी पार्ट, दैट विल बी 0. So C is the correct answer. So I hope everyone this discussion will help you, and all the best with your preparation. Thank you.